कि आज इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से सीबीएसई टर्म 2 के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मतलब जो क्वेश्चंस यानी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछ चुका है, उस तरह के एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सिलेक्टेड करके आज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसमें से जो इस साल का जो सीबीएसई क्लास 10 के लिए जो साइंस का जो सिंपल पेपर रिलीज हुआ है, उसमें से भी जो 2 क्वेश्चन है, यानी 3 मार्क्स का 2 क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी से दिया हुआ, तो वो 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन भी आज हम सॉल्व करेंगे। ओके, सो हियर इज फर्स्ट क्वेश्चन। A torch bulb is rated 2.5 volt and 750 milliampere. Calculate its power. Number 2, its resistance. Number 3, the energy consumed if this bulb is lighted for 4 hours. अगर लगातार ये 4 hours 4 hours अगर कंटिन्यू वर्क कर रहा है, then we have to find these 3 things, that means the power, resistance and the energy consumed. So very easy question. We solve this one just like this. How to solve this one? Question telling us a torch bulb is rated this one. So we have given here is volt potential, that means the potential V is equal to 2.5 volt and the electric current I is equal to 750 milliampere. 750 milliampere. So it can be converted into 750 into 10 to the power minus 3 ampere. We know that means milliampere can be converted, so we have to multiply 10 to the power minus 3, so 10 to the power minus 3 ampere. 1 milliampere is equal to 10 to the power minus 3 ampere. And first question, we have to find out that power. What is the power? Firstly, power. So we know that power P is equal to V into I, and directly we can conclude that we can find out the answer. P is equal to V into I. So the value of P here we have given here is V is 2.5 and I is here is 750 into 10 to the power minus 3. When we multiply this one and when we solve this one, so I here multiply 750 into 2.5, so 500 5525 5 carry 2 5 35 35 and 2 37, and here is 200 2510 0 carry 1 2 3 2 7 14 115. Here is 0, here is 5, here is 7 and 5 3 8. Now we put here is 1. After 1 digit we put here, so 1875 into 10 to the power minus 3, 1875 into 10 to the power 3. Here is watt, so here is power, so we can here is watt. So this number and this whole number can be represented in scientific notation. So here is 10 to the power minus 3, so it is divided by if we divide this one by 1000, that will give, here is 1000, so when we divide this one by the 1000 we obtain 1.875 watt. Okay, so this will be the right answer, because here is 10 to the power minus 3, so here multiply when we divide, so 10 to the power minus 3 should be changed into 10 to the power 3. 10 to the power 3, that means 1000, and when we divide the 1875 by 1000 we got this one 1.875 watt. So what is the power of this bulb is 1.875. Now second part of this question is, what is resistance? We have to find resistance. So we know that directly resistance, here we have a V and also I. So by the Ohm's law we can write V is equal to IR by Ohm's law. By Ohm's law we can write V is equal to IR. So here is V, we have to find R. So when we subtract it as R, so R is equal to V upon I. We put the value of V. What is the value of V? V is here is 2.5. So I put here 2.5, and electric current I, we have here given I. Yeah, here is I is what 750 into 10 to the power minus 3 ampere. 10 to the power minus 3 ampere. So here is 10 to the minus 3. Here is 50. So when we remove this one decimal, I put here is 10 or 10 to the power 1. So here is 25 upon here is 750. 10 to the power minus 3 or 10 to the power 1, 10 to the power 1, same base power should be added, minus 3 plus 1, that will be minus 2, and here is 25 1 25, here is 25 1 25, 25 3 is 75 0,
that means 1 upon 30, and here is 10 to the power 2, that means 100, 0 0 cancel, 10 upon 3, 3.33, this will be the ohm. So the second part of this question telling us found out the resistance. So by using Ohm's law we can write V is equal to IR, so R is equal to V upon I. We put the value of V and I, we got 3.33 ampere. And third part of this chapter is on this question, the energy. Finally we have to find the energy. So dear, we know that E is equal to P into T, energy E is equal to P into T. So from first, here is we have a power is what, 1.875, and time for how for 4 hours. So I put here is 4. Okay, so here is 4. So when we multiply this one, here is watt and watt hour, then here is watt hour. When we multiply 4 5 j 20, 0 carry 2, and here is 4 7 ja 4 5 j 20, 0 carry 2, 4 7 ja 35, 4 7 ja 28, and 2 30, 4 7 ja 28, 2 30, 0 carry 3, 4 8 ja 32, and 3 35. Now here is 4 1 ja 4, and 4 1 ja 4, and 3 7. One more time, 4 5 ja 20, 0 carry 2, 4 7 ja 28, 2 30, 0 carry 3. If 4 8 ja 32, and 3 35, so I put 5 carry 3, 4 1 ja 4, and 3 7. So after 3 digit, here is 7.5, here is 7.5 watt hour, 7.5, here is watt hour. So it can be converted into the kilowatt hour. So 7.5 divided by 1000, that will convert watt hour into the kilowatt hour, because we know that in commercial unit of energy is kilowatt hour. So I can change this watt hour into the kilowatt hour by dividing 1000. So the right answer will be 7.5 into, here is 1000, that means 10 to the power 3. So when we bring its denominator as a numerator, so 10 to the power minus 3 kilowatt hour. So this will be the easy question. Okay, so such types of question is very easy, and this question was asked in 2021, that means previous year's questions. Okay, so it's very easy. Firstly, in such types of numerical, first we have to memorize all formulas, and last video we solve every formula. So here is given that in a bulb, here is total volt is 2.5 volt, and here is ampere current, so 750 milliampere. So this milliampere converted into the ampere, 10 to the power minus 3 ampere, and by using this formula we easily can solve all this numeric problem. Here is one power, its power, resistance, and the energy consumed So I hope you must be cleared. Okay, ये इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं था. हम इसको, इस चैप्टर को, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम सारा इस चैप्टर से जितना भी इम्पोर्टेंस ये फार्मूला था, हम इसको इससे पहले वाला वीडियो में हम बना दिए थे. आपको बोले थे कि फार्मूला सिर्फ याद रख लीजिए, आपको इजीली सॉल्व कर सकते हैं. तो जैसे कि हम आपके सामने सॉल्व करके देखें, इसमें कोई ज़्यादा कुछ नहीं था, कोई सिर्फ आपको न्यूमेरिकल्स आपका जो वैल्यू है उसको पुट करना था, और फार्मूला पे रखें और उसको वैल्यू पुट के, और इजी सॉल्यूशन है. तो इसमें हम लोगों को देखिए, कोई भी चैप्टर में न्यूमेरिकल्स जो आता है, तो हम लोगों को ये जानना चाहिए कि फार्मूला तो मस्ट नेसेसरी चीज़, तो फार्मूला याद रखना ही, बट सिर्फ फार्मूला रखने से फिजिक्स का न्यूमेरिकल नहीं बनता. ओके, हम लोगों को ये जानना चाहिए कि वेर वी हैव टू यूज़ दिस फार्मूला ना. हम लोगों को तो यह है फार्मूला इंपॉर्टेंस है, बिकॉज अगर फार्मूला याद नहीं रखेंगे तो हाउ टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल्स, बट मस्ट बी वी नो अबाउट हाउ टू यूज़ दिस फार्मूला एंड वेयर टू यूज़ दिस फार्मूला. ये सबको कैसे यूज करेंगे और कहाँ पर यूज करेंगे, ये दो इंपॉर्टेंस है. तो आई होप आपको ये समझ में. अब एनर्जी कंज्यूम्ड बाय हीटर, जो तो इक्वल टू पी इंटू टी. तो हीटर का कितना, इतना किलो है. देखो यहाँ नोटिस करना है, यहाँ पर जब पावर है ये किलोवाट में ही है, इसको मत चेंज करना. तो 1 हो गया, 1 किलोवाट है ये, और 1 किलोवाट और कितना 1 आवर के लिए, तो 1, और हमको कितना, ये 1 डे में 1 आवर, लेकिन टोटल कितना डे का निकालना, 31 डे का. तो 31 डे का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 31 इंटू 1, तो 31 ही होगा. यानी किलोवाट देवा ही होता मेरा, किलोवाट और आवर है तो वाट आवर. तो ये हो गया. अब टोटल एनर्जी मेरा, इसको मेरा टोटल एनर्जी कंज्यूम करेंगे, तो टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय
मेरा सबसे पहले क्या है बल्ब, तो बल्ब कितना लगा 46.5 किलो वाट आवर। इधर है मेरा 31 किलो वाट आवर आर प्लस जो इलेक्ट्रिक हीटर जो क्या है वो 31 किलो वाट आवर। जब सबको ऐड करेंगे, इधर ऐड कर लेते हैं 31, फिर इधर है मेरा 31, इधर है मेरा 46.5 4 6 इधर 6 to 8, इधर 4 3 7 10 100, दैट मीन्स 108.5 किलो वाट 1 किलो वाट आवर। ओके, तो इतना एनर्जी टोटल कंज्यूम करता है। ठीक है, इजी। इसके बाद क्या फिर पूछ रहा है, फिर बाद पूछ रहा है इन ए मंथ एंड, पूछ रहा है एंड इट्स कॉस्ट ऑफ एट द रेट ऑफ ₹360 पर किलो वाट। देखो क्या लिखा ना, पर किलो वाट आवर, यानी 1 किलो वाट आवर के लिए इतना, तो इतना के लिए तो मल्टीप्लाई डायरेक्टली करना। देयरफॉर टोटल कॉस्ट को आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो एट द रेट ऑफ 3 रुपीज़ 60 पैसे, तो इधर टोटल मेरा एनर्जी कितना है 108.5 किलो वाट आवर। और 1 किलो वाट आवर के लिए कितना कॉस्ट है 3.60। जब इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद वी गॉट आंसर। हम लोग इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इधर है मेरा 108.5, इधर है मेरा 3.60, सो 0, इधर है 6 5 30, 0 carry 3, 6 8 जा 48, 48 351 एंड here is 6 1 जा 6, 3 5 जा 15, 5 carry 1, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, 5 carry 1, 3 8 जा 24 1 25 और फिर 3 1 जा 3, so 0 0 5.6 and here is 5 5 10, 0 carry 1, 4 2 8 1 9, 6 2 8 1 9 and here is 3. After how many 2 and 3 digit 1 2 and now 3, that means 390.6 rupees, 390, here है 390.6 rupees. So this will be the right answer. Okay, so ये easy था इस तरह का क्वेश्चन। फिर सेकंड थर्ड क्वेश्चन, melts at 5 ampere. Okay, if it desire that the fuse wire of the same material, इसे नहीं देखना, सेम मटेरियल पर डिपेंड है ना, मटेरियल प्रॉपर्टी, सेम मटेरियल melts at 10 ampere, then should the new fuse wire be smaller or larger radius than the earlier one? Okay, बोलता है क्या, ये आप समझिए इजी है, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। और अपने जो आंसर है क्या कि आप जो दोगे क्या कि जो मेरा फ्यूज़ वायर का जो है ये रेडियस जो होगा वो लार्जर होगा या स्मॉलर, पहले ये, और जो उसका देखो तो उसके बारे में आप एक्सप्लेन करना है कि क्यों आप ऐसे बोल रहे हो। ओके, उसका रीजंस लिखना, अपने आंसर का रीज़न को लिखना है, एक्सप्लेन करना है। तो पहले हम लोग इसको क्वेश्चन को समझते हैं, बहुत ईजी है क्वेश्चन, वी कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन। ए फ्यूज़ वायर ऑफ मेल्ट 5 एम्पियर, ठीक है, एक सपोज करो एक फ्यूज़ वायर है, ठीक है, ये कोई वायर है पतला होता है 5 एम्पियर, जो ये ए फ्यूज़ वायर ऑफ मेल्ट 5, ये मान लो फ्यूज़ वायर है, तो ये पहले ये 5 एम्पियर में वो मतलब मेल्ट हो जाता था, मतलब इससे जैसे ये आएगा उससे ज़्यादा वो रेजिस्टेंस को सस्टेन नहीं कर पा रहा था और ये मेल्ट हो जा रहा था। ठीक है, क्लियर है। फिर क्या बोलता है, इफ़ इट डिज़ायर दैट द फ्यूज़ वायर ऑफ सेम मटेरियल, उसी मटेरियल का, देखो सेम मटेरियल का पॉइंट शुड बी नोट, देखो इस पॉइंट को याद रखना, सेम मटेरियल का, उसी मटेरियल का, ठीक है, मटेरियल प्रॉपर्टी है, मेल्ट एट 10 एम्पियर, मान लो उसी एम्पियर के सेम मटेरियल के वायर को, न्यू कोई वायर है जो सेम मटेरियल का है, उसको अगर 10 एम्पियर पे, कितना 10 एम्पियर पे मेल्ट होना है, देन शुड द न्यू फ्यूज वायर बी स्मॉलर शुड द न्यू फ्यूज वायर बी स्मॉलर और लार्जर रेडियस देन द अर्लियर। तो बोल रहा था फिर बताओ जो न्यू फ्यूज वायर होगा उसका जो रेडियस होगा वो स्मॉलर होगा या लार्जर होगा पहले से, इससे 5 एम्पियर वाला से, ये जो 10 एम्पियर वाला जो मेरा फ्यूज वायर होगा वो उससे ज़्यादा होगा कि लार्जर होगा, मतलब ज़्यादा होगा स्मॉलर होगा। इसको हम आराम से ये कर सकते हैं, देखो जैसे कि हमको इस पर क्या मेल्ट नहीं होना है, यानी 5 एम्पियर से भी बढ़ जाए, मतलब 10 एम्पियर में अब मेल्ट होना है। मेल्ट होने का क्या मीनिंग है कि अब जो देखो मेल्ट क्यों होता है, जब इलेक्ट्रिक करंट वायर से पास होता है तो ये अपोज करता है इसके इलेक्ट्रॉन के मोशन को अपोज करता है, तो अब अपोज करता है तो वही अपोज जो है, सिंस इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है तो इसमें एनर्जी है, तो एनर्जी तो कभी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लोग जानते हैं, एनर्जी नेदर क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी तो कभी कंज्यूम ये नहीं होती है, डिस्ट्रॉयड नहीं होता, तो वही जो उसके काइनेटिक एनर्जी उसमें जो था उस इलेक्ट्रॉन में, वही एनर्जी इस हीट के फॉर्मेट में रिलीज़ होता है, हीट के इसमें ये होता है, टर्मिनल्स ऑफ हीट निकलता है, जिसके चलते जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है। तो
किसी भी वायर का, ये तो देखो सेम मटेरियल यानी मटेरियल प्रॉपर्टी का जहाँ से बात आए तो वो रेसिस्टिविटी डिपेंड करता है। देखो रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी दोनों अपोजिट है, लेकिन रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस आपका मटेरियल प्रॉपर्टी नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी नहीं है, बट ये जो है रेसिस्टिविटी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। तो हमको क्या बोल रहा है कि आप बताओ कि अगर हम 10 एम्पियर का, अगर उसको उस वायर को, न्यू फ्यूज वायर को अगर 10 एम्पियर में मेल्ट होना हो, 10 एम्पियर में मेल्ट होना हो, तो बताओ कि इसमें से जो 10 एम्पियर में अगर वो मेल्ट होगा तो उसका रेडियस जो है स्मॉलर होगा कि लार्जर होगा। डेफिनेटली आप जानते हैं, हम जानते हैं कि आप लोग भी जानते हो कि लार्जर होगा, बोल रहे हो लार्जर होगा। ओके, वेरी नाइस, लार्जर होगा। बट एक्सप्लेन करना है क्यों, देखो हम आराम से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। बिकॉज हम लोग जानते हैं कि रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस R इक्वल टू L इंटू लेंथ बाय एरिया A होता है, ठीक है ना। अगर हम लोग रेसिस्टिविटी के टर्म में लिखें तो रेसिस्टिविटी ऑफ सब्सटेंस जो होता है, रेसिस्टिविटी इक्वल टू R इंटू A बाई L। तो देखो यहाँ रेसिस्टिविटी, आप इसको छोड़ो, रेजिस्टेंस और लेंथ को भी छोड़ो, ये रेसिस्टिविटी देखो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एरिया मतलब पायर स्क्वायर, मतलब क्या, रेसिस्टिविटी जो है रेडियस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हम ऐसे बोल सकते हैं कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस, है ना। तो मतलब क्या हो रहा है कि आप जितना रेडियस बढ़ाओगे, इंक्रीज करोगे, जितना बड़ा ज़्यादा रेडियस होगा यानी रेसिस्टिविटी उतना ज़्यादा होगा, उतना रेसिस्टिविटी क्या होगा, उतना ज़्यादा होगा, क्यों, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब हमको 10 एम्पियर इसमें जाने के लिए, क्या 10 एम्पियर में मेल्ट होने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके रेसिस्टिविटी, इसके रेडियस को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, है ना। तो न्यू फ्यूज वायर शुड बी लार्जर, है ना, शुड बी लार्जर देन द अर्लियर वन, है ना। उससे क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, बिकॉज वी नो दैट द रेसिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। वो उसके स्क्वायर के ये होता है। तो ये जितना ज़्यादा होगा, ये जितना ज़्यादा होगा रेसिस्टिविटी उतना ज़्यादा होगा, और रेसिस्टिविटी जितना ज़्यादा होगा उसको उतना मेल्ट कर, उसको उतना अपोज करेगा, और जितना ज़्यादा ये अपोज करेगा तो वो मेल्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग को ये करने के लिए, यानी 10 एम्पियर में अगर हमको ज़्यादा करंट में हमको 10 एम्पियर में ये कराना है, मेल्ट कराना है, तो हम लोगों का क्या करना है, फ्यूज वायर को स्मॉलर, दैट मीन्स क्या, सॉरी, लार्जर बनाना है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, आंसर हम इसको लिख सकते हैं, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है 2014 में, हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, कि न्यू फ्यूज वायर, है ना, न्यू फ्यूज वायर, है ना, शुड बी, है ना, न्यू फ्यूज वायर, है ना, शुड बी लार्जर देन लार्जर, है ना, लार्जर रेडियस, है ना, लार्जर रेडियस देन अर्लियर वन। ओके, बिकॉज, है ना, बिकॉज वी नो दैट, है ना, हम लोग जानते हैं, बिकॉज वी नो दैट रेसिस्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस, है ना, बिकॉज वी नो दैट रेसिस्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस, और कंडक्टर आप लिख सकते हैं, ऑफ ए सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द square of their distance, square of is directly proportional to square of their radius, sorry, square of their radius। तो रेडियस जितना ज़्यादा होगा, है ना, उसका रेसिस्टिविटी उतना ज़्यादा होगा, रेसिस्टिविटी जितना ज़्यादा होगा तो वो मतलब उसको रोकेगा उतना ज़्यादा, मतलब उस अपोज उतना ज़्यादा करेगा। ओके, सो ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, ये हमको पूछा हुआ क्वेश्चन था कि बताओ कि कैसे, मतलब क्या ये होता है, अब इस तरह आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर ऑफ 0.01 सेंटीमीटर रेडियस इज 10 ओम। ओके, एक वायर है जिसका रेडियस 0.01 सेंटीमीटर है, देखना है यहाँ पर, जिसका जो रेजिस्टेंस है कितना, 10 ओम है। इफ़ द रेसिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल ऑफ द वायर इज 15 × 10⁻⁸ ओम मीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। ये 2040 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको भी आप इजीली लिख सकते हो, इजी सॉल्व कर सकते हो। द रेजिस्टेंस, ओके, द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज इतना, सो द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर ऑफ इतना रेडियस, सो रेडियस ऑफ द वायर, रेडियस इसको आर कितना है मेरा, 0.01 सेंटीमीटर, इसको बाद में चेंज कर सकते हैं या इधर ही लिख सकते हैं, 0.01 डिवाइडेड बाई 100, तो ये मेरा सेंटीमीटर, ये यूनिट में, SI यूनिट में, मीटर में चेंज हो गया। ओके, वहाँ सॉल्व कर लेंगे इसमें ईजी से। इसके बाद जो मेरा रेजिस्टेंस है मेरा, वो कितना है रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस जो जिसको आर से डिनोट करते हैं, वो मेरा कितना है, 10 ओम है, कितना है, 10 ओम है।
so of the material, and the resistivity of the substance, resistivity that means रो जो है ना, जो रो है मेरा रो जो है वो मेरा कितना है 50 × 10⁻⁸ ओम मीटर। ओके, सो हमको क्या मांग रहा है, फाइंड द लेंथ L इज इक्वल टू वाट। सो इट्स वेरी इजी, रेजिस्टेंस वी नो दैट रेजिस्टेंस R इक्वल टू रो इंटू L/A। तो हमको क्या निकलना है, लेंथ निकालना। लेंथ को सब्जेक्ट बनाते हैं, लेंथ इज इक्वल टू R रेजिस्टेंस इंटू A/, रेजिस्टिविटी। अब सिर्फ इसको पुट कर दो। रेजिस्टेंस कितना है मेरा रेजिस्टेंस है 10 ओम, तो एरिया πr², तो πr² होता है, क्योंकि देखो वो जो मेरा वायर है तो उसका तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, सर्कुलर है, इसका एरिया क्या होता है πr²। ओके, πr², तो पाई का यहाँ 3.14, आप 22/7 भी रख सकते हो। r², r कितना मेरा r है 0.1, तो स्क्वायर इसको 2 टाइम्स लिखते हैं, 0.01 × 0.01 और बाई ये सेंटीमीटर था, इसलिए मीटर में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। ओके, πr² और रो रेसिस्टिविटी मेरा कितना है मेरा 50 × 10⁻⁸, राइट। अब इसको सॉल्व करते हैं, है ना, लेंथ। तो इधर है मेरा 10⁸, तो 10⁴ इधर हो जाएगा, इजीली इसको कर सकते हैं। इधर मेरा कितना है 10 × 3.14 × 0. तो इसको हम लिख सकते हैं 0.2 -2, यहाँ पर 2 डिजिट, तो 0 -2, तो 0 to -4 लिख सकते हैं। इधर है मेरा 50 × 10⁻⁸, इधर है मेरा 10⁴ लिख सकते हैं, तो 10⁴। अब इस ईजी से आप सॉल्व कर सकते हो, एकदम ईजिली सॉल्व कर सकते हो, है ना। इधर है मेरा, हम ईजी कर सकते हैं, इधर है, अब इसको 0 कैंसिल। ओके, सो इधर 10⁻⁴, इधर है, इधर मेरा 10⁻⁸ है, 10⁴ है, तो इस दोनों सेम बेस पॉजिटिव डिबेटेड, तो 10⁻⁴ आएगा, 10⁻⁴। इसके ऊपर ये दोनों कटेगा तो 10⁻⁴ आएगा, क्योंकि ये करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो 10⁻⁴, फिर 10⁻⁴ है, फिर ये दोनों कैंसिल। ओके, ये दोनों मेरा क्या हो गया कैंसिल। तो इधर है मेरा 10⁻⁴ बचेगा, 10⁻⁴, ये ऊपर भी कैंसिल। तो ये मेरा बचा कितना, ऊपर में मेरा 3.14 बाई नीचे में क्या मेरा बच गया 5 बच गया, है ना। 5 से जब 5 को डिवाइड कर देंगे ना 5 से इसको जब क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, डिवाइड, तो मेरा कितना आ जाएगा देखते हैं। 5 से 30, 0.5 से 30। ओके, तो कैरी 1, फिर उधर आ गया तो 14, तो 5 to 10, कैरी 4, 40, 5 × 40, 0.8, और मेरा सब यूनिट में रखे थे SI यूनिट पर मीटर। सो ये राइट आंसर होगा, एकदम ईजी है, इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ पर है ना, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 100 10⁻², 10⁻², यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना 0.01, यानी हम इसको लिख सकते हैं 10⁻⁻², क्योंकि 1/², देखो ना, तो मैथमेटिक्स आता ही है। 0.1 इसको अगर ये करेंगे डेसिमल हटाएंगे, फिर 2 0 डालेंगे, यानी 1/100, इस 1/100 को 10⁻² लिखेंगे, 10⁻² है, 2 0 है, ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻² होगा, इसीलिए हम डायरेक्ट लिखे। तो इधर 10⁻², यहाँ पर फिर 10⁻², इसको कैसे सॉल्व किए, देखो 10⁻² और 10⁻², तो सेम बेस पावर एडेड होगा, 10⁻² -2 10⁻⁴। अब 10⁻⁴ आता नीचे में 10 दोनों कैंसिल हो गया, इधर बचा मेरा 3.14, इधर मेरा 5 बचा, इसको डिवाइड किया 0.28। सो ये ईजी था, ये 2014 का क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी 3 मार्क्स का, जितना भी क्वेश्चन बनाते रहे CBSE कभी ना कभी पूछा है, और 3 मार्क्स का क्वेश्चन। ओके, इसलिए हम इस बार सिर्फ अभी, क्योंकि आपका जो है सामने आपका एग्ज़ाम है, बोर्ड एग्जाम, तो हम सिर्फ 3 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा CBSE, एक्चुअली अभी हम वो भी बना देंगे। तो इस बार CBSE रिलीज़ किया है। ओके, इस बार जो मेरा CBSE जो अपना ये आपका सैम्पल पेपर जो रिलीज़ किया, उसमें जो क्वेश्चन है वो वाला भी बनाएंगे। ओके, 1 by 1 सब बनाएंगे, आप वेट करो, ये क्वेश्चन सब भी कहीं से मतलब स्किप ना दे, इसलिए तो बोल रहे हैं कि इस क्वेश्चन सबको बना लो, आप पे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखो क्या क्वेश्चन है, द फिगर बिलो shows 3 cylindrical copper conductors along with their face areas and length। 3 आपका जो है सिलेंड्रिकली कॉपर कंडक्टर दिया हुआ A1 2 3 अलॉन्ग विथ देयर फेस एरिया, उसके देखो सबका फेस का एरिया दिया हुआ, इसका A है, इसका A/2 है, इसका ट्वाइस है, ठीक है।
वैसे फिगर हम उसके अकॉर्डिंग नहीं बनाया, बट ये दिया हुआ क्वेश्चन में। एंड लेंथ इसका एल है तो इसका ट्वाइस ऑफ, इससे टू टाइम्स है, और इसको हाफ कर दे, इसका हाफ L/2 कर दिए। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिस्कस इन विच ज्योमेट्रिकल शेप द रेजिस्टेंस विल बी हाईएस्ट, किसमें सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। 2013 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इजी क्वेश्चन है। रेजिस्टेंस इन फर्स्ट में हम लिख सकते हैं रेजिस्टेंस R1 लिख लेते हैं। R1 इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है मेरा रो इंटू L/A। ओके, इसको फर्स्ट कर देते हैं। R1 इज इक्वल टू रो इंटू L/A, पहला मेरा L है, कैपिटल L। फिर हम सेकंड के लिए निकालेंगे तो फॉर सेकंड के लिए मेरा क्या है, मतलब R2 जो निकालेंगे तो वो क्या मिला, सिंस सेम बोल दिया ना, 3 कॉपर कंडक्टर, मतलब क्या कि तीनों जो है उसका जो कॉपर का ही है। ओके, कॉपर का ही है, मतलब सेम उसका, तो उसका रेसिस्टिविटी में चेंज नहीं होगा। ठीक है भाई, सब उसका क्या है, कॉपर का है, कॉपर। तो ये मेरा रो इज इक्वल टू इस फॉर्मूला जो तो है रेजिस्टेंस का R2 इज इक्वल टू रो इंटू L/A। तो अब इसके जगह हम लिखेंगे रो है तो रो, L के जगह हम क्या लिखेंगे, ट्वाइस ऑफ L 2L। और एरिया की जगह जो मेरा पहले इसका एरिया क्या दिया हुआ, A/2 दिया हुआ, A/2। तो जब इसको पुट करेंगे तो ये 2 बाहर आ जाएगा, फिर ये डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू रो इंटू L/A। तो 2 जो कितना हो जाएगा 4 इंटू रो इंटू L/A। तो इधर 4, देखो यहाँ रो इंटू L/A को R1 लिख सकते हैं, है ना, यही ना, फ्रॉम 1 या यूजिंग 1 लिख सकते हैं, यूजिंग 1। तो 4R1 क्या हो गया, 4R1, यानी R2 जो है R1 से 4 टाइम्स है। ठीक है, यानी इसका सेकेंड वन का रेजिस्टेंस मोर है। थर्ड निकालते हैं, क्या मेरा थर्ड वन R3 निकालेंगे तो फिर वही फॉर्मूला रो इंटू L/A। तो रो तो मेरा सेम सब्सटेंस का, तो इसलिए रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होगा। लेंथ यहाँ पर क्या मेरा लेंथ हाफ हो जाता है, यानी L/2, और एरिया क्या हो जाता है, ट्वाइस ही हो जाता है, दैट मीन्स 2 एरिया हो जाएगा 2A। ओके, तो हम इसको लिखेंगे तो रो है, फिर L है तो L, और यहाँ A है तो ये 2, देखो 2 नीचे आएगा और यहाँ वाला 2, तो 2 इंटू 2 जा 4, तो इसको 1/4 लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ 1/4 है, और यहाँ रो इंटू L/A, इसको तो हम R1 लिख सकते हैं, दैट मीन्स R1/4, यानी इसका रेजिस्टेंस जो है और घट गया, है ना, R3 का रेजिस्टेंस और घट गया। यहाँ सिंपली भी आपको मालूम है कि फैक्टर रिस्पेक्टिंग द रेजिस्टेंस, वो कौन सा फैक्टर है जो जिस पर जो है किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी कंडक्टिव वायर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि ये देखो इसका जो है थिकनेस या इसका एरिया, देखो ये सबसे ज़्यादा है, क्या एरिया ज़्यादा है, तो एरिया बहुत ज़्यादा है तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस कम होगा, है ना, रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस R इक्वल टू रो इंटू L/A, यानी रेजिस्टेंस जो है वो एरिया का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो एरिया इंक्रीज हो गया, तो हमको समझ में आ रहा है कि रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। वो प्रूफ भी हुआ, देखो रेजिस्टेंस मेरा क्या हुआ, पहले से R3 जो है वो पहले वाले रेजिस्टेंस के 4 टाइम्स, वो स्मॉलर होगा। ठीक है, और ये सेकेंड वाला जो है उससे कितना होगा, 4 टाइम्स मोर होगा। तो हमको क्वेश्चन पूछ रहा है डिस्कस विच ज्योमेट्रिकल शेप विल बी हाईएस्ट, तो हाईएस्ट में क्या आ जाएगा 2 नंबर में। आप देख रहे हो 2 नंबर में 4 ऑफ R1 आ रहा है। ठीक है, R1 का 4 टाइम्स आ जा रहा है, क्लियर है। आप देख भी पा रहे हो, इसका भी रीजन है, देखो दोनों तरफ से इसका एरिया भी देखो घटा गया, A/2 आ गया, और देखो लेंथ इंक्रीज हो गया, ठीक है ना। और अभी हम बोले ना कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो इंटू L/A, यानी रेजिस्टेंस जो होता है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो लेंथ मेरा बढ़ा, इंक्रीज हुआ लेंथ, तो मेरा क्या हुआ, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। देखो इसमें दोनों में रेजिस्टेंस पे, तो एक फैक्टर मेरा यहाँ से मिल गया। दूसरा एरिया डिक्रीज हुआ, A/2, तो एरिया डिक्रीज हुआ तो उधर से भी मेरा रेजिस्टेंस क्योंकि इन्वर्सली है तो इंक्रीज होगा। तो इस तरह से रेजिस्टेंस मेरा इंक्रीज हो गया। ओके, आई होप मस्ट बी क्लियर, आप लोगों को समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम इसको लिखेंगे I इक्वल टू V/R, तो V मेरा कितना है दोस्त 2 है, R मेरा कितना है 20 है, तो 2 × 2 2 × 20 यानी 1/10, दैट मीन्स 0.1 एम्पियर, मेरा आंसर है। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम आपको बना दे रहे हैं क्वेश्चन, इसका सेकेंड पार्ट। अब इसका सेकेंड क्वेश्चन, इसी का सेकेंड पार्ट का क्वेश्चन है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। ए स्टूडेंट बॉयल्स, है ना, ए स्टूडेंट्स, 1 मिनट, अब इसका जो सेकेंड पार्ट का क्वेश्चन है वो इजी है। ए स्टूडेंट्स, इसका सेकेंड, उसी का सेकेंड पार्ट क्वेश्चन है क्या, ए स्टूडेंट बॉयल्स वाटर इन एन इलेक्ट्रिक केटल
हाँ ना, इलेक्ट्रिक केटल फॉर 20 मिनट्स। एक स्टूडेंट है जो वाटर को जो है बॉयल्स कराना चाहता है, वो बॉयल कराता है कितना मिनट में, 20 मिनट्स में, यूजिंग द सेम मेन सप्लाई, यानी जिस भी उसका जो सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, जैसे वो सप्लाई कर रहा है, बैटरी है जो भी है, ही वांट्स टू रिड्यूस द बॉइलिंग टाइम, है ना, वो बॉइलिंग टाइम को रिड्यूस कराना चाहता है। दैट मीन्स क्या, टाइम को जो 20 मिनट्स में जो ये रिड्यूस बॉयल हो रहा था ना, उसको जल्दी कराना चाहता है, मतलब जल्दी से कुछ काम होगा, जल्दी से उसको कराना चाहता है कि जल्दी वो बॉयल हो जाए। ओके, टू डू सो ही इंक्रीज और डिक्रीज द लेंथ ऑफ हीटिंग एलिमेंट, है ना, लेंथ ऑफ हीटिंग एलिमेंट का जो इंक्रीज कराना पड़ेगा और डिक्रीज करना पड़ेगा। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड जस्टिफाइड योर आंसर। और फिर हमको बोल रहा है कि अगर इंक्रीज होगा तो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, इसके बाद आप अपने आंसर को जस्टिफाइड कीजिए, बताइए, एक्सप्लेन कीजिए कि क्यों वो इंक्रीज हुआ या क्यों या डिक्रीज हुआ। इट्स ईजी क्वेश्चन है, इस सब क्वेश्चन को समझ लेना, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, एकदम ईजी, आराम से समझ सकते हो। क्या बोल रहा है कि ए स्टूडेंट बॉयल्स वाटर एंड इलेक्ट्रिक केटल फॉर 20 मिनट्स, 20 मिनट्स के लिए वो यूज करता है, यूजिंग सेम मेन सप्लाई। यू वांट टू रिड्यूस द बॉइलिंग टाइम, यानी बॉइलिंग टाइम को वो रिड्यूस कराना चाहता है, मतलब क्या कि जो हीट जल्दी होगा, मतलब टाइम को घटाना चाहता है, मतलब क्या हम इसको इस तरह बोल सकते हैं, मतलब वो जल्दी से मतलब हीट कराना चाहता है, मतलब रेट ऑफ हीटिंग जो है, रेट ऑफ जो हीटिंग है उसको वो इंक्रीज कराना चाहता है, रेट ऑफ हीटिंग। तो रेट मतलब टाइम, है ना, रेट ऑफ हीटिंग रेट जो है जल्दी हीट होगा, जिसके चलते जो रेट ऑफ हीटिंग अगर वो इंक्रीज होगा तो टाइम ओबियसली जल्दी वो हीट होगा तो टाइम घटेगा। दैट मीन्स रेट ऑफ हीटिंग को क्या कराना चाहता है, इंक्रीज कराना चाहता है, इंक्रीज करना था रेट ऑफ हीटिंग। दैट इम्प्लाई हम लोग इसको बोल सकते हैं पावर, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पावर द रेट ऑफ डूइंग वर्क, उसी को तो यहाँ पर वर्क क्या आ रहा है, हीट होने का, तो रेट ऑफ हीटिंग यानी पावर को वो इंक्रीज करना चाहता है। दैट मीन्स क्या, पावर को इंक्रीज करने का मतलब क्या कि जैसे कि पावर पी इज इक्वल टू होता है द रेट ऑफ डूइंग, पी इज इक्वल टू W/T, यानी तब ना देखो पावर इंक्रीज होगा तब ना टाइम मेरा डिक्रीज होगा, क्या होगा, टाइम मेरा डिक्रीज होगा, क्योंकि वो देखो ना जल्दी करना, रिड्यूस टू बॉइलिंग द टाइम ऑफ वाटर, ये टाइम को रिड्यूस करना चाहता है, इसमें पावर को इंक्रीज करना पड़ेगा। इतना समझ में आ गया कि रेट ऑफ हीटिंग दैट मीन्स पावर को इंक्रीज करना है। अब हम देखते हैं कि पावर जो यहाँ तक हम लोग को समझ में आया। अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि पावर कैसे जो है मेरे पावर जो है उसका रिलेशन क्या है, वो लेंथ ऑफ हीटिंग एलिमेंट का, लेंथ ऑफ हीटिंग एलिमेंट का। तो देखो हम लोग जानते हैं कि पावर जो है P इज इक्वल टू V² अपॉन R। देखो यहाँ P का रिलेशन रेजिस्टेंस है, मतलब क्या, अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब क्या, अगर P इंक्रीज करेगा, P को इंक्रीज कराओ तो रेजिस्टेंस मेरा क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्या होगा मेरा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ से सिंपली हमको समझ में आया कि अगर हमको रेट ऑफ हीटिंग इंक्रीज करना है, दैट मीन्स अगर हमको पावर इंक्रीज कराना होगा, अगर पावर इंक्रीज कराने के लिए रेजिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। लेकिन अभी भी हम कंप्लीट आंसर पे नहीं गए, क्योंकि हमको रेजिस्टेंस के टर्म पे नहीं मांग रहा, हमको बोल रहा है क्या, टू डू सो ऐसा करने के लिए शुड ही इंक्रीज और डिक्रीज द लेंथ के ऊपर हमको कमेंट करने बोल रहा है। तो हमको मालूम है फैक्टर रिस्पेक्टिंग द रेजिस्टेंस, हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस हम लोग यहाँ से फिर आगे बोल सकते हैं, सिंस वी नो दैट रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू होता है कितना, रो इंटू L/A, यानी रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, रेजिस्टेंस जो वो लेंथ के, रेजिस्टेंस जो वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रेजिस्टेंस जो है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या, रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आपको रेजिस्टेंस यहाँ क्या करना, पावर इंक्रीज करने के लिए रेजिस्टेंस घटाना पड़ेगा, रेजिस्टेंस को घटाओगे, रेजिस्टेंस घटाओगे तो मतलब क्या, लेंथ को भी क्या करना, घटाना पड़ेगा। तो ओवरऑल हमको ये समझ में आया कि अगर हम लेंथ को डिक्रीज करते हैं तो लेंथ को डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा तो मेरा पावर ज़्यादा होगा, पावर इंक्रीज होने का मतलब रेट ऑफ हीटिंग मेरा इंक्रीज होगा। तो सिंपली हमको समझ में आ गया कि रेट ऑफ हीटिंग को इंक्रीज कराने के लिए हमको लेंथ को जो क्या करा, डिक्रीज कराना पड़ेगा, लेंथ को डिक्रीज करना पड़ेगा। एक बार फिर पूरा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, देखो एकदम सिंपली समझिए इसको, फिर हम इसको लिख देंगे क्या कि पावर ऑफ हीटिंग, देखो ना क्या बोल रहा है, यूजिंग द सेम सप्लाई यू वांट टू रिड्यूस द बॉइलिंग टाइम, वही नहीं, यानी रेट ऑफ हीटिंग वो इंक्रीज कराना चाहता है। रेट ऑफ हीटिंग को इंक्रीज कराने के लिए आपको पावर को इंक्रीज कराना पड़ेगा, और पावर को इंक्रीज कराने के लिए यहाँ देखो, पावर को इंक्रीज कराने के लिए, क्योंकि पावर इंक्रीज होगा तब ना टाइम घटेगा, रिड्यूस, टाइम को घटाने के लिए बोल रहे हो आप, पावर इंक्रीज तब ना टाइम कम समय लगेगा। तो और पावर जो होता है ये रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और रेजिस्टेंस जो होता है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो डायरेक्टली हम लोग अगर यहाँ पर इस तरह बात करें कि पावर रेट ऑफ हीटिंग को अगर इंक्रीज कराना हो तो हमको लेंथ ऑफ हीटिंग एलिमेंट उसको क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, ये हम एक्सप्लेनेशन कर दिए, आपको लिखना क्या है
है ना, लिखेंगे क्या कि वाट टू डू सो, है ना, आंसर हम लिख सकते हैं, है ना, टू इंक्रीज, है ना, टू रिड्यूस द टाइम, to reduce the boiling time of water, to reduce the boiling time of water, to reduce the boiling time of water, है ना, he should, है ना, he should reduce, he should be decrease, he should be decrease the length, है ना, length of heating element, length of हीटिंग एलिमेंट को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा हीटिंग एलिमेंट, है ना, टू रिड्यूस द बॉइलिंग टाइम ऑफ वाटर, ही शुड बी रिड्यूस द लेंथ ऑफ हीटिंग एलिमेंट, है ना, उसको क्या करना पड़ेगा, है ना, ही शुड बी डिक्रीज द लेंथ ऑफ हीटिंग एलिमेंट, उसको क्या करना पड़ेगा, हीटिंग एलिमेंट का लेंथ को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। ये तो मेरा आंसर हो गया। फिर इसके बाद क्या बोल रहा है, जस्टिफाइड योर आंसर, तो आप इसको पैराग्राफ चेंज करके लिख सकते हो, है ना, सिंस वी नो दैट, है ना, टू रिड्यूस टाइम, है ना, to reduce time, power should be increased. We know that to reduce time, power should be increased, and power is inversely proportional to the resistance, inversely proportional to the resistance of element, or substance, inversely proportional to the resistance of heating element or element, okay, and since you also know, since we know inversely proportional to the resistance, and since we know resistance is directly proportional to the length of conductor or conducting wire, okay. Explanation, to reduce the boiling time, he should be decrease the length of heating element, है ना, उसको बॉइलिंग टाइम को रिड्यूस कराने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, लेंथ ऑफ हीटिंग एलिमेंट को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं, सिंस वी नो दैट टू रिड्यूस द पावर should be to reduce the time power should be increases, है ना, power should, to reduce the time power should be increases, and power is inversely proportional to the resistance of element, since we know that अब resistance is directly proportional to the length of conductor, और हम पहले ही कर दिए हैं क्या कि रेजिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा, हेंस लेंथ को भी क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा, ओके। तो आई होप आपको समझ में आ गया। ये पूरा इजी क्वेश्चन था कि कैसे, यानी अगर कोई टाइम ऑफ रिड्यूस, जो क्या टाइम ऑफ बॉइलिंग, है ना, इसको अगर वो रिड्यूस कराना चाहता है तो क्या करना पड़ेगा, उसका लेंथ ऑफ हीटिंग एलिमेंट को डिक्रीज करना पड़ेगा कि इंक्रीज करना पड़ेगा। एकदम सिंपल सा बात है दोस्त, क्या कि अगर आप, ये मेरा रेजिस्टेंस है, अगर इसका लेंथ को आप डिक्रीज करा दोगे, आप लेंथ जितना डिक्रीज करोगे, डिक्रीज करना है क्या, लेंथ की अगर बात करेंगे तो लेंथ जितना तुम डिक्रीज करा रहा हो, लेंथ जितना तुम डिक्रीज करोगे, तो जितना लेंथ डिक्रीज करोगे उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, उतना क्या होगा, कम होगा, क्योंकि वो लेंथ जो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर हो गया? आई होप आपको समझ में आ गया, ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए ये अब इसका आर टोटल, है ना, इसका आर टोटल ये, और इधर जो मेरा ये तीनों सीरीज में तो लिखेंगे क्या, सिंस, है ना। अब ये जब मेरा निकल गया यहाँ तक समझ में क्लियर है, आर टोटल हम लोग निकाल लें इस तीनों का। अब लिखेंगे क्या,
सिक्स ओम, फिर ये हम जो लिखें आर टोटल एंड 6 ओम आर इन किसमें है, सीरीज में देयरफॉर आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2, दैट मीन 6 ओम प्लस 6 ओम प्लस ये मेरा कितना निकला 10R1 अपॉन 3R1 और प्लस 10, तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 6 प्लस 6 यानी 12 प्लस 10R1 अपॉन 3R1 प्लस 10, ये मेरा आर इक्विवेलेंट भी निकल गया। अब हम आराम से निकाल सकते हैं, अब हम आराम से इजीली वी कैन फाइंड आपका क्या मेरा, आप ओम्स लॉ लगाएंगे V इज इक्वल टू आई आर, तो V कितना मेरा 30 इज इक्वल टू, सो डायरेक्टली हम यहाँ पर ले सकते हैं V अपॉन आई इज इक्वल टू मेरा R निकलेगा, तो V मेरा कितना 30 आर है, करंट कितना 2 एम्पियर, R मेरा कितना वहाँ पर R है मेरा 12 प्लस 10R1 अपॉन 3R1 और प्लस 10, तो इधर हो गया मेरा 15 ये 12 सर माइनस 12 इक्वल मेरा 10R1 अपॉन 3R1 प्लस 10, हम इधर सॉल्व कर देते हैं 15 माइनस 12 वी गेट 3, here is 10R1, सो डायरेक्टली एक स्टेप ही कर रहे हैं, 3 होगा इस पर के तो मल्टीप्लाई आ जाता है, ओके, तो 3R1 और प्लस 10 इज इक्वल टू, इधर मेरा कितना है 10R1, तो देखो यहाँ पर 3 3 जा 9R1 है और 3 10 जा 30, ओके, तो इस बार में लिख देते हैं 30, 3 10 जा 30 हो जाएगा, इधर 10R1 और 3 3 जा 9R1, तो इस बार आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इधर कितना बच गया R1, देयरफॉर R1 इज इक्वल टू कितना हो गया 30 ओम, यही हमको निकालने बोल रहा था, ओके। तो सिंपली कुछ नहीं क्वेश्चन में था, देखिए हम पॉजिटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रिक करंट को पास करा दिए हैं, इलेक्ट्रिक करंट इधर से मूव करेगा, अब देखो ये R1 ये तीनों मिलके क्या पैरेलल में है, तो हम पहले इसका इस तीनों पैरेलल के लिए हम यहाँ से सॉल्यूशन किए हैं ना, सॉल्यूशन मेरा यहाँ से स्टार्ट है, ओके, सॉल्यूशन हम यहाँ से स्टार्ट किए, तो हम पहले आर टोटल निकालें क्योंकि पैरेलल में है, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो सब इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के इन्वर्सली उसके जो इन्वर्सली है ना, उसके सम के बराबर होता है ना, तो इसके बाद हम इसको ये कर लिए, फिर 1/r टोटल हम इजीली निकालें इसको इजी सॉल्व करके, इसके बाद हम देखें क्या इस तीनों का जो इक्विवेलेंट ये और ये तीनों किस में है, सीरीज में है, तो सीरीज में वो अलजेब्रिक सम के बराबर होता है, 6 प्लस 6 और प्लस ये जो इक्विवेलेंट में निकालें 10R1 निकाल के आर इक्विवेलेंट निकालें तो इतना है। अब आर इक्विवेलेंट निकालना है हमको, इसमें से क्या निकालने बोल रहा है हमको, निकालने बोल रहा है आर निकालने बोल रहा है ना, तो सिंपली ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, तो V मेरा गिवन है, आई भी सिर्फ आर निकल जाएगा, तो आर इज इक्वल टू V अपॉन आई, तो वही तो किए V इज इक्वल टू आई, आर इक्वल टू V अपॉन आई, सब पुट कर दिए। एक अननोन क्वांटिटी था R1 और मेरे पास एक इक्वेशन था, मतलब हम इससे आराम से सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कर दिए, मेरा R1 इज इक्वल टू 30 ओम। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन।